There's not much difference between a band 8 and a band 6 writing task 2 essay. The major difference lies in the basic vocabulary and the advanced vocabulary. Second reason is the basic sentence structures, simple sentence structures, and variations and advanced forms of sentences. In this video, you will learn how you can elevate your writing task 2 score from a band 6 to a band 8, and even I will explain how you can write in very simple steps how you can write a band 8 IELTS writing task 2 essay. And as a beginner, even you can also learn how to write a band 6 IELTS writing task 2 essay. So without wasting time, let's get started. So today we are going to discuss the question, many people like to wear fashionable clothes. Why is this so? And is this a positive or negative development? So now let's see how you can write a band 6 essay and a band 8 writing task 2 essay, and also how you can elevate your score from a band 6 to a band 8. Don't miss this video and watch this video till the end. You will get a lot of things to learn in this video. So here is the comparison between a band 6 and a band 8 writing task 2 essay, and the question is, most people like to wear fashionable clothes. Why is this so? Is this positive or negative development? ये जो ऐसे था वो 14 सितंबर वाले एग्जाम में भी आया था. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के ऐसे में आपने किस तरीके से लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द 6 बैंड इंट्रोडक्शन. सो अगर आपका टारगेट अराउंड 5 to 6 है, सो मेक श्योर टू राइट इट एज फॉलोज in a very simple and easy steps. So firstly, I have written, nowadays many people like to wear fashionable clothes because they want to look good and feel accepted by others. Just because उनको खुद को अच्छा दिखना है, इसीलिए वो fashionable clothes को wear करते हैं. The main reason is that it helps them show their personality and fit with the society. मतलब हमने इसको बता दिया कि पर्सनैलिटी को शो करने में हेल्प करता है एंड सोसाइटी में ऑब्वियसली फिट करने में हमें हेल्प करती हैं फैशनेबल क्लोथिंग. However, this can also lead to problems like spending too much money on clothes and harming the environment. And इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट होती है, अननेसेसरी मनी वेस्ट होती है, एंड ऑब्वियसली इससे एनवायरनमेंट भी हार्म होता है. दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ दीज साइड्स. सो हमने इन शॉर्ट रिफ्रेश करके बता दिया रीज़न क्या है एंड हमने उसके नेगेटिव डेवलपमेंट क्यों है ये भी बता दिया. मतलब आप इस चीज़ को माइंड में रखो कि वाई इज़ दिस सो का भी आंसर आपने इंट्रो में लिखना है, एंड अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, ट्राई करो इसका आंसर भी आप साथ ही में इंट्रोडक्शन में लिख लो. सो मूविंग ऑन टू अ बैंड 8 इंट्रोडक्शन. सो I have written here in today's society. So nowadays को मैंने replace कर दिया in today's society. तो आप भी साथ साथ में नोट करना कि आप कौन से common words and basic words use करते हो एंड आप उनको कैसे with the 8 band vocabulary words replace कर सकते हो. एंड यहाँ पर in today's society मैंने लिखा nowadays को replace करके, and nowadays is a very common word, तो आप भी उसको replace कर सकते हो by writing in today's society. Fashion has become a significant part of how people present themselves to the world, shaping both personal identity and social standing. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया has become a, मतलब मैंने यूज़ किया यहाँ पे present perfect, मैंने tense यूज़ किया. Try to use good sentence structures, good grammar. उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया सिर्फ मैंने क्या किया, वोकेबलरी मैंने बेटर यूज़ करी, प्रेजेंट देमसेल्व्स यूज़ कर दिया, पर्सनल आइडेंटिटी यूज़ कर दिया, सोशल स्टैंडिंग यूज़ कर दिया. मतलब आई हैव जस्ट चेंज द वोकेबलरी वर्ड्स. द प्राइमरी रीज़न मैनी इंडिविजुअल्स चूज टू वियर फैशनेबल क्लोथ्स इज़ टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी एंड गेन सोशल एक्सेप्टेंस. मतलब उनको ये चाहिए कि वो सोसाइटी में अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ एंड सोशल एक्सेप्टेंस गेन कर पाएँ. हाउएवर, वाइल फैशन कैन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है फैशन, एंड क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है, इट कैन ऑल्सो लीड टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज. अगेन दिस इज द कोलोकेशन. हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज सच एज ओवर कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. मतलब आप देख सकते हो कि 6 बैंड इंट्रो में एंड 8 बैंड इंट्रो में सिर्फ मैंने क्या टारगेट किया, वोकेबलरी वर्ड्स को,
आप सिंपल वोकेबलरी वर्ड्स को काफ़ी एडवांस्ड एंड अच्छे वोकेबलरी वर्ड्स के साथ कैसे replace कर सकते हो. This essay will argue that despite some positive aspects, the overall impact of this trend is largely negative. तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया वर्ड largely negative. तो बेसिकली इस वाली वीडियो में आई एम टारगेटिंग कि आपने बेसिक वोकेबलरी वर्ड्स को विद एडवांस्ड वोकेबलरी वर्ड्स आपने कैसे रिप्लेस करना है. तो इतनी चीज़ आपको आई थिंक इंट्रो से ही समझ में आ गई होगी कि मैंने कितने सारे बेसिक वर्ड्स यूज़ करे थे इन 6 बैंड वाली इंट्रो, एंड उनको मैंने इतने अच्छे एडवांस्ड वर्ड्स एंड कोलोकेशंस के साथ मैंने किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना के लिख दिया. इवन मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस की थोड़ी सी फॉर्मेशन भी चेंज करी, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, यहाँ पर मैंने डिस्पाइट भी यूज़ कर दिया, एंड मैंने यहाँ पर हाउएवर भी यूज़ कर दिया, वाइल भी यूज़ कर दिया. मतलब इतने ही चेंजेस के साथ वोकेबलरी को एंड थोड़ा सा सेंटेंसेस को चेंज करके इतना आपका 8 लेवल का बन जाता है. आपके प्रॉब्लम आइडियाज़ में नहीं होती, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है. सो बैंड 6 को अगर आपने BP1 लिखना हो, BP1 का क्वेश्चन क्या था, वाई इज़ दिस सो, तो मतलब रीजंस पीपल वेयर फैशनेबल क्लोथ्स, इसका रीज़न क्या है. तो स्टार्टिंग में एज यू नो कि आईडी पे अकॉर्डिंग हमने जो मेन अपना आइडिया है, जो मेन पॉइंट है, दैट वी हैव टू राइट. तो मैंने यहाँ पे लिखा है वन रीज़न पीपल लाइक फैशनेबल क्लोथ्स इज़ दैट इट हेल्प्स देम शो हु दे आर, मतलब आइडेंटिटी हो गया. क्लोथ्स आर अ वे ऑफ टेलिंग पीपल अबाउट योर पर्सनैलिटी, मतलब क्लोथ्स एक तरीका है अपनी पर्सनैलिटी को बताने का. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं या डॉक्टर हैं तो आप वैसे क्लोथ्स वेयर करेंगी, एंड अगर आप लॉयर हैं तो आप वैसे क्लोथ्स वेयर करेंगी. फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिशनल फंक्शन में जा रहे हैं तो वैसे क्लोथ्स आप पहनोगे. सो मतलब क्लोथ्स आर अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर पर्सनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल समवन हु वियर्स डिज़ाइनर क्लोथ्स माइट वॉन्ट टू शो दैट दे हैव मनी और अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल. जो ज़्यादा डिज़ाइनर क्लोथ्स वियर करता है वो मे भी ये शो करना चाहता है कि उसके पास अच्छा पैसा है एंड अच्छा सेंस ऑफ स्टाइल है. ऑल्सो इसके साथ मैनी पीपल फॉलो फैशन बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक लाइक देयर इन्फ्लुएंसर्स एंड फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को कॉपी भी कई लोग करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम शो अस व्हाट्स इन स्टाइल एंड पीपल ट्राई टू कॉपी दैट. सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमें काफ़ी कुछ ये स्टाइलिंग के बारे में सीखने को मिलता है. सो ये 6 बैंड का BP1 है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गलत नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पर आपने काफ़ी बेसिक वोकैबुलरी एंड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं, राइट. तो आप इसको 8 बैंड में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. तो इस लेसन से आप ये सीखो कि आप अपने बेसिक वर्ड्स को एंड सिंपल सेंटेंसेस को विद एडवांस सेंटेंसेस एंड वर्ड्स वोकैबुलरी कोलोकेशंस आप भी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, द मेन रीज़न इंडिविजुअल्स आर ड्रॉन टू. द मेन रीज़न बिहाइंड लिखते हो, द मेन रीज़न फॉर लिखते हो, द मेन रीजन्स इंडिविजुअल्स आर ड्रॉन टू, द मेजर ड्राइविंग फोर्स, इस तरीके के वर्ड्स यू हैव टू यूज. आर ड्रॉन टू फैशनेबल क्लोथिंग इज इट्स एबिलिटी टू एनहांस सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सोशल स्टेटस, मतलब इट्स जस्ट अगेन द यूसेज ऑफ वोकैबुलरी. Fashion allows people to communicate their values and personality without words, often helping them fit in with societal norms. Societal norms में fit करने में help करता है. तो मैंने यहाँ पे पहले point लिख दिए, उसके बाद I have explained. Now उसके बाद for instance, wearing trendy or branded attire can project wealth. Show मतलब can project wealth और अ कीन सेंस ऑफ स्टाइल. सिर्फ मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स को चेंज किया. अगेन लीडिंग टू ग्रेटर सोशल रिकॉग्नाइजेशन. सो यू कैन सी कि मैंने कैसे वर्ड्स यूज करे इन बैंड 8. मोर ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक हैवीली इन्फ्लुएंस फैशन चॉइसेस. हैवीली इन्फ्लुएंस मतलब कोलोकेशंस आपने ऐसे यूज करनी है. फैशन चॉइसेस बाय शोकेसिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स through influencers and celebrities. This creates a sense of pressure to keep up with these trends in order to maintain social relevance. अगर एक बार कोई किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करना शुरू कर देता है तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि उसने उसको मेंटेन करके रखना है. टू मेंटेन मतलब टू कीप अप with these trends and maintain social relevance. So you have to compare
कि मैंने 6 बैंड में कैसे वोकैबुलरी यूज़ करी एंड उसको मैंने 8 बैंड के साथ कैसे रिप्लेस करा। लेकिन अगर आपका टारगेट अराउंड 5 to 6 है तो आप इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस भी लिख सकते हो। कंडीशन ये है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं आपके पास होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू बॉडी पैराग्राफ 2, जिसमें मैंने क्या लिखा, नेगेटिव इफेक्ट्स एंड फैशन। सो इवन दो, यहाँ पे मैंने अगेन थोड़ा सा सेंटेंस यूज किया है कंडीशनल, इवन दो फैशनेबल क्लोथ्स कैन हेल्प पीपल फील गुड, इट हैज सम बैड इफेक्ट्स। इसके कुछ बैड इफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट, बाइंग क्लोथ्स ऑल द टाइम कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली पीपल स्पेंड मोर देन दे नीड, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं ऑन क्लोथिंग, एंड समटाइम्स दे बाय थिंग्स दे डोंट इवन वियर, भी जो चीज़ उन्होंने पहननी भी नहीं है वो भी वियर कर देते हैं जस्ट फॉर दी मतलब कह सकते हैं इंस्टाग्राम की, सोशल प्लेटफॉर्म की इन्फ्लुएंस के अंडर। सेकेंडली, फैशन इंडस्ट्री इज बैड फॉर द एनवायरनमेंट, इट यूजेस अ लॉट ऑफ वाटर एंड एनर्जी to make clothes, and when people throw away it creates waste, this harms planet and adds pollution। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया कि नेगेटिव इफेक्ट्स इसके क्या हैं, ठीक है। एंड कंक्लूजन में हमने इसको कैसे लिखा, इन कंक्लूजन, although wearing fashionable clothes can help people express themselves and fit in, it also leads to problems like overspending and pollution। मतलब आपने जो BP1 का आइडिया लिखा, BP2 का आपने मेन आइडिया लिखा, सिर्फ उसको आपने समराइज करना होता है इन दी कंक्लूजन, एंड थोड़ा सा आपने सजेशन भी देनी होती है या अपना ओपिनियन आप बोल सकते हो। देयरफॉर व्हाइल इट हैज सम गुड पॉइंट्स, इट इज़ मोस्टली अ नेगेटिव डेवलपमेंट। आपने ओवरऑल ऐसे को कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज गुड इनफ फॉर 6 अराउंड 6 बैंड। सो लेट्स टॉक अबाउट अ बैंड 8 BP2 एंड कंक्लूजन। एक तो इसमें क्या बात है, लेंथ जो है यू कैन सी, यू कैन कंपेयर द लेंथ एज वेल। 6 बैंड की लेंथ थोड़ी छोटी है एंड 8 बैंड की लेंथ थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है। तो यहाँ पर 8 बैंड में मैंने कैसे लिखा, हाउ एवर the pursuit of fashion often results in significant negative consequences। So let's look at BP2, how I have and what I have written. So however, the pursuit of fashion often results in significant negative consequences। मतलब look at the collocations I have used here, significant negative consequences। The fast fashion industry encourages a throwaway culture। थ्रो अवे मतलब पहना एंड आपने डिस्कार्ड कर दिया। वेयर पीपल फ्रीक्वेंटली बाय एंड डिस्कार्ड क्लोथ्स टू स्टे अप टू डेट विद रैपिडली शिफ्टिंग ट्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये मैंने क्या लिखा, इसका मीनिंग क्या है। सो दिस ओवर कंजम्पशन नॉट ओनली स्ट्रेन्स पर्सनल फाइनेंसेस, स्ट्रेन्स मतलब परेशान करना, मतलब स्ट्रेस में आना, बट ऑल्सो हैज सीवियर एनवायरमेंटल रेपरकशंस। रेपरकशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। The production of textiles मतलब clothes requires vast amounts of water and energy, while discarded clothing contributes to landfill waste and pollution। तो अगर आप वेस्ट कपड़ों को डिस्कार्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एंड पोल्यूशन भी क्रिएट होती है। फर्दर मोर ऑब्सेशन मतलब पागलपन with the appearance fosters materialism, reducing the focus on more meaningful values and promoting superficial societal culture। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का जो ध्यान है थोड़ा सा मटीरियलिज्म की तरफ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। एंड थस डिज़ायर फॉर फैशन ऑफन comes at the expense of substantiability and deeper societal connections। तो इसका कितना नुकसान हो सकता है, you can see that। उसके बाद let's moving on to the conclusion। So in conclusion you can write it as, in conclusion, although fashionable clothing enables a self-impression, self-expression and enhances social standing, the negative consequences of overconsumption, environmental harm एंड मटीरियलिज्म आउटवे द पॉजिटिव्स। मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट से ज़्यादा क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है इस चीज़ का। देयरफॉर व्हाइल फैशन मे हैव सम बेनिफिट्स, it represents a largely negative development requiring a more balanced approach to consumption and substantiation and sustainability। तो मतलब इसका क्या हो गया कि फैशन में भी बेनिफिशियल हो सकता है
लेकिन इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, जिससे आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए फॉर कंजम्पशन एंड सस्टेनेबिलिटी. So this is how you can also compare a 6 band and a band 8 writing task to intro, body paragraphs and conclusion. So it's just a matter of vocabulary, कोलोकेशंस एंड योर सेंटेंस फॉर्मेशंस. तो इसमें मैंने बेसिकली टारगेट किसको किया था, वोकैबुलरी को, कोलोकेशंस को एंड सेंटेंस की फॉर्मेशंस को. एंड आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा वेरिएशंस यूज़ करी थी बैंड 8 वाले सैंपल में. तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेटिव मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation.